give or build profile according to that. So picturing your goals, which can motivate you and keep you focused. It helps you in planning how to reach your goals, helps you to set priorities to stay organized. You're not going to be a scattered kind of person कि मुझे ये भी try करना है, ये भी try करना है, ये भी try करना है. अभी जब हम बात करते हैं up to 8th standard, we are going to pick and choose things like that. But now it's the right time to make tea. T, what's T in the career guidance? Like you are going to try, if and बस आपके life में आते रहेंगे, आपको choose करेंगे, आप enjoy करेंगे, maybe you are not going to like it, but try everything. Once you are going to attain that level that I am very much good in this particular thing, now go in depth. You have to do it. You have to train yourself physically, mentally for that particular career, because if you're going to see the profile building, even the universities abroad, what they are seeking for, the constant growth, and they are going to see the growth from the level of 9th to 12th specifically if you're going for undergraduation. For post graduation, what kind of internships you have done, what is a work culture in which you are very much okay with that, or the soft skills you have, we are going to cover in that presentation as well. But basically you are going to get enough time, plenty of time to get into the depth of that career which you have chosen for you as a future career. Sometimes you need to do things in a certain order. So it's important to know where to start. It gives you, I would say in your language, it gives you a kick, how to start the thing. Sometimes we're very much hesitant that should I try this or not, should I try this or not. But if you are focused, if you are going to get a career guidance on time, if you are going to get to know what are my strength areas, because when we are going to eliminate the guesswork, how we are going to do this, we are going to let you know that these are the weak areas you are not going to touch, because we don't want you to be sad, or I would say you don't need to feel sorry about the weaknesses you have. You need to focus on your strength areas. So with the help of counseling you will be able, even your teachers are doing this. Ritu ma'am, you must be aware, हम बच्चे को यही बताते रहते हैं that how to keep yourself motivated. तो वहां पे क्या है कि जो बच्चे की वीकनेस है, अगर हम उसी को ही बार बार एक बीइंग अ टीचर, शी इज डेफिनेटली गोइंग टू रिलेट विद मी, नीति मैम एंड ऋतु मैम, कि हमारा मेन फोकस होता है कि जो बच्चे का प्लस पॉइंट है, जो उसका स्ट्रेंथ एरिया है, उसको कैसे अपस्किल किया जाए. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल एंड एबिलिटीज व्हिच आर एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, अभी हम डांस में थोड़े से बेहतर हैं, तो उसको कैसे हम अपस्किल कर सकते हैं, उसमें और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेना, उसको एक अपर लेवल तक लेके जाना, उसमें डिग्री कोर्स करना, एंड इट विल बूस्ट योर प्रोफाइल एंड यू विल गेट टू नो कि मुझे इसके साथ क्या करना है. इवन अ साइकोलॉजी विद डांस कैन हेल्प यू आउट टू बिकम अ डांस थेरेपिस्ट. तो इस तरह का जो एक करियर काउंसलिंग सेशंस के दौरान यूजुअली, as I have mentioned again and again, eliminating the guesswork and giving you a complete idea about the strength areas to be focused on. Next slide, please. So, as I mentioned earlier, peer pressure. We need to be very much sure about this thing. We are all different human beings, and no single decision is applicable to all the students. Different choices are suitable for different situations. Maybe the budget problem is different. Each and every family is having different kind of budget, different kind of family bondings. So and a lot depends on the person's specific skills. As I've mentioned, we are not a photocopy of each other. We are having a different skills, interests, strengths, and personality. So take your decision by keeping your uniqueness in mind. You're a unique person, you're a different person, and there are many risks involved if you're going to copy a person. Career misalignment is going to be happen in future, career path misadjustment is going to be happen, wrong career path projections, and unnecessary stress which will lead you to bad mental health, and it will not help you to grow in your future. So if you want to grow, then we have to start this thing, eliminating the guesswork and what are the risks involved in taking decision as per our friends, or the or the any mentor you are guiding,
guided by in a family or in a school, you should take help from that person as a counselor, as a guide, because I'm not asking you to go for a career counseling straight away. If a person who is very much, open minded in terms of giving you an advice, then you should have faith in that person. And I would like to request all the students who are present here to please mention all these things, and you can send us the queries if you have in mind, through ma'am or directly to us through Google link we are going to provide, or we is going to provide you at the last end of the session. So I just want to make you very much clear that just, make this stereotype that my cousin is doing this, so I have to do this. इसमें ज़्यादा financial benefit है. I'm very patriotic kind of person, so I have to join army only. It's not like that. There are, different areas or zones from which, you are going to support your country. You can show your patriotic idea or concept or thought process. You can serve a country in a better way by doing IAS also, IAS. But it's not necessary कि अगर आपको physical task में आप बहुत अच्छे नहीं हैं, if you are not a realistic kind of person and you want to serve a country, you can be a doctor. You can serve your country like that. आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यू आर सर्विंग कंट्री. इवन टीचर्स ऑफ दिस कंट्री, दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू अ स्टूडेंट, जहां पे वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, अच्छे सिटीजन बनते हैं. इट्स डेफिनेटली अ पेट्रियोटिक फीलिंग दे हैव, दैट मेरी कंट्री का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक ह्यूमन मेंटालिटी, माइंडसेट नेगेटिव हो. सो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा, मुझे लगता है, पेट्रियोटिक थॉट प्रोसेस है जो इस फील्ड के अंदर होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो नेक्स्ट थिंग इज पर्सनालिटी असेसमेंट. आई बिलीव नेक्स्ट स्लाइड. ओके. So personality assessment will help you to understand yourself as a person. It will help you to expand your career options in alignment with your personality, and the self understanding and awareness can lead you to more appropriate and rewarding career choices. The personality type model identifies 4 dimensions. तो अभी हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमारी पर्सनालिटी टाइप कैसा है. ये आई बिलीव जिन जिन स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजी डेफिनेटली बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ वो सेगमेंट समझ पाता है. अदर देन दोज जो उस साइकोलॉजी या उस तरह के सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे, उनके लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वी नीड to take decision as per our personality, and how to identify our personality is a big challenge, because somehow we are not in a situation जहाँ self realization होता है, and we are very much aware about the thought process कि मेरा personality type क्या है. जहां पे आपको एक फीडबैक आता रहता है, रेगुलर फीडबैक बाय द टीचर्स, बाय द पेरेंट्स, वहां यू आर वेरी मच फेमिलियर कि मेरा ये पर्सनालिटी टाइप है, और यू आर इनटू सेल्फ रियलाइजेशन मोड. अदरवाइज आपको एक अपना पर्सनालिटी, अपना इंटरेस्ट, आपका करियर इंटरेस्ट क्या है, करियर इंटरेस्ट आर द आर योर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्क एक्टिविटीज एनवायरनमेंट. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इफ यू आर अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, तो आपके जो फिजिकल एस्पेक्ट में यू आर गोइंग टू बी अ डूअर काइंड ऑफ पर्सन, जो फिजिकल एस्पेक्ट में काम करता है. अगर आपके इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हैं, तो वहां पे आपको एक रिसर्च में जाना, लॉजिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो हम इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की बात करते हैं. इफ यू हैव अ क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तो हम आर्टिस्टिक होने की बात करते हैं. इफ यू आर अ हेल्पर, देन वी टॉक अबाउट द सोशल एस्पेक्ट of your side, and then enterprising, which will lead you towards the leadership quality you have, and the conventional, who are very much okay with the kind of system going on, or the clerical task, or the office organization, something like that. So we need to be very much sure कि हमें किस लेवल पे हम फॉल करते हैं. ये आई बिलीव इट्स नॉट अ राइट प्लेस टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. एज आई मेंशन्ड, कभी कभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है. डोंट डू द गेस वर्क. It's again going to be start as a guesswork again. So following your career interest means you are pursuing a career that uses your talent and align with your values and preferences. So we need to be very much clear before taking any decision. इसमें हम चांस नहीं ले सकते हैं कि हम गेस करें कि अरे आई एम अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन. देयर शुड बी अ साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड नोइंग कि ऐसा क्यों है. हाउ कैन आई कंफर्म कि मैं एक रियलिस्टिक पर्सन हूँ. आप कैसे कंफर्म करेंगे? सो फॉर दैट
these kind of assessments are created जहां पर आपसे एक अलग अलग theories को psychology की use करके कुछ इस तरह के assessment create किए गए हैं जहां पे आपसे question answer पूछा जाता है, जहां पे आप unconsciously उसके answer करते हैं और आपको एक result पता चलता है that I fall into this particular category. तो वहां पे आप अपना decision लें. There should be a scientific process. या आप अपने किसी मेंटर, अपनी टीचर की हेल्प लें, देन उनके साथ बैठ के थोड़ा सा होमवर्क करें कि एम आई दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मुझे किस तरह के काम करना पसंद आता है. इवन इफ यू आर वेरी मच ईगर टू नो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर और यू कैन go for assessment as well. Next slide please. So I believe your learning style, as I mentioned, along with personality and interest, your learning type, the kinesthetic learner, are you an auditory learner, visual or reading or writing is more appropriate for you, your emotional intelligence, your skills and abilities. So all these things are very much important in our life. What kind of work culture we are, going to enjoy in future. As I mentioned earlier, everyone is different. So there is no use in explaining personality, interest or learning system on this particular platform on in a long way. But yes, you should understand how knowing your type can help you to choose your career. Next slide, please. So knowing your type can help you definitely. I'm mentioning you how. You may understand a good match for your personality. Then it will help you to understand others and your own behavior. It will help you to communicate better with others, because team building itself is a very important thing. You are not going to work alone in future. You are going to work in a team. So how to manage that team? How to know them with empathy? If you don't have any empathy, then you won't be able to work in a team culture in future. We are not robots. We need to have emotional support on our workplace. It will help you to communicate better with others, because if you're having an idea out here but you're not able to present on that table, that without communication you won't be able to grow in future. You will be able to work more cooperatively and with groups with others. More importantly is the manage people better in a work situation, appreciate individual differences, and more. Now I would like to focus on today's situation, where we are standing, why we are doing this online session, because of COVID. So major concern areas during COVID, there are approximately, I would say, in my opinion, I have decided to cover the 4 areas. Leading career options after COVID-19, because there are many industries which are growing and there are many industries which are not growing. They are not doing anything well in this industry. So we need to make sure कि हम जब अर्ली करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो अर्ली करियर प्लानिंग हमें हेल्प करेगा टू जज कि अभी इस सिचुएशन के बाद कौन सा इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे मुझे ग्रोथ मिल रहा है. सो आई शुड प्लान माय करियर अकॉर्डिंगली, बिकॉज स्टूडेंट्स हु आर इनटू ट्रैवल, they are not they are very disappointed with the kind of situation globally what is going on. So early career planning helps you to change your direction on time. उसके बाद वहां पे जाके रिग्रेट करना या स्ट्रगल करना, आई बिलीव इट्स नॉट अ गुड आइडिया इफ वी आर हैविंग ऑलरेडी हैविंग अ सिचुएशन जहां हम अपने अपने फ्यूचर को प्लान करके उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कॉमन करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस फील्ड. अभी बिकॉज मे बी मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे बच्चे रिग्रेट करते हैं, बट देयर इज अ स्पेसिफिक रेशो जो एक स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद कभी कभी रिग्रेट करता है दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम और मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है. सो हमेशा एक छोटे लॉस की तरफ जाए. अगर आपका 2 साल का स्ट्रीम सिलेक्शन का लॉस आपने किया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे अगले 3 साल 4 साल भी आगे अपना लॉस फर्दर करना है. सो इट वुड बी बेटर अगर आप कॉमन करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, अगर आपने ऐसा स्ट्रीम ले लिया है कि आप उसके बाद डेफिनेटली अगर आपने साइकोलॉजी इन ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, यू वोंट बी एबल टू डू बीएससी. लेकिन अगर हम कॉमन करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर आप उसके साथ एक मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यू आर एबल टू डू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस. तो ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैंने बताया, एक छोटे लॉस को मत देखिए कि मैंने 2 साल इन्वेस्ट किए. ये देखिए कि आगे फ्यूचर में मेरे पास और ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जहां मैं मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और वहां पे मेरी ग्रोथ के चांसेस एज पर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री अगर कैपेसिटी है तो आई शुड डू दैट.
देन अगर हम बच्चों की बात करें तो अभी एक प्रोफाइल बिल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन उसमें इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद द आइडिया कि मैम इंटर्नशिप करेंगे कहाँ पे, बिकॉज अभी कोविड ने तो बिल्कुल ही ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट कर दिया है, और अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो आप अपनी स्टडीज को हर्डल नहीं कर सकते, because compromising your studies and doing internship is not a good idea, because aptitude wise we need to be very much strong. So internships, especially during and after COVID-19, but for you it's quite early and individual aspect to discuss on this particular platform. But the essential soft skill, I would say soft skills are the, you need to cultivate to be future ready in every important, to be, it's very important to be, or to be discussed on this platform, I would say, because soft skills are going to give you an idea how to prepare yourself for the future careers. Next slide, please. Because, next. रिक्रूटर्स क्या देख रहे हैं आपके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जो भी अपना करियर में स्टडीज में कर रहे हैं आज की डेट के अंदर, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू वांट टू गेट अ गुड जॉब और यू वांट टू परस्यू अ गुड बिजनेस इन फ्यूचर। तो वो कैसे होगा अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगे? सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय लिंक्डइन, लिंक्डइन व्हाट इज लिंक्डइन, आप में से बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे होंगे बट मे बी लिंक्डइन पे नहीं होंगे। तो लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो प्रोफेशनल्स के लिए है। और बच्चे कई बार सोचते हैं कि मैम अभी तो हमने प्रोफेशन में कुछ किया नहीं है, तो अभी हमारे लिए क्या सही रहेगा लिंक्डइन पे जाना? डेफिनेटली इट्स अ राइट टाइम टू लॉग इन इनटू दैट प्लेटफॉर्म, रीजन बीइंग कि वहां आप प्रोफेशनल्स को देख सकते हैं, उनकी ग्रोथ जर्नी को देख सकते हैं, यू कैन गेट अ कंप्लीट आइडिया हाउ दे हैव अचीव्ड, बिकॉज what they are doing on that platform is they are mentioning कि हमने कैसे कैसे अपनी फर्दर स्टडीज करी, क्या हमारा एक्सपीरियंस है। आप अपने अगर एक ड्रीम कॉलेज को एस्पायर करते हैं तो ड्रीम कॉलेज के आप अपने एलुमनाइज को देख सकते हैं। अगर आपको कोई ड्रीम कंपनी है टू गेट अ जॉब आउट देयर, तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या फीडबैक है, वो रिव्यूज लिखते हैं उसके अंदर अपनी कंपनी के बारे में। नॉट ओनली दैट, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी ग्लोबली आउटसाइड इंडिया, वहां पे भी आप देख सकते हैं वो यूनिवर्सिटीज वहां पे प्रेजेंट होती हैं। यू कैन गेट अ कंप्लीट आइडिया व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स और द स्पॉन्सरशिप। इवन आई वुड से अजीम प्रेम जी, उनका अगर हम देखें तो लिंक्डइन पे इतना एक्टिव है उनका जो प्रोफाइल है, वो बताते रहते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी तरह के प्रोग्राम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स वी आर ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स। So from where you are going to get this information? Not on Facebook, not on Instagram. So you are going to get it on a professional, a space. So you have to go to LinkedIn. Then according to LinkedIn, all the professionals, they have given, a list of soft skills which are required, which are in demand. Communication, as I mentioned, if you're having an idea here but you're not able to put it on table, then it's a zero idea or flop idea. Then organization skills, dealing with a team, and then punctuality, your time management, the critical thinking you have, how you get into a conclusion or give a problem solving skills, your social skills, because somehow you have to deal with the masses, the creativity you have, the interpersonal skills, adaptability. Then these are some skills that are needed in every industry and at every level. You can't avoid them. So just to be future ready, you need to have those soft skills, which I have mentioned. Maybe you have to work on more, but these are the essential key, soft skills we need to focus. Next slide, please. So soft skills are essential, as I mentioned, for growth and development. If you want to grow or achieve something in your life, people with certain soft skills tend to be more, I would say, productive, and hence can move towards success at a faster rate. Skills like adaptability, or make it easy for you to fit into a new situation. If you are a quick learner, you can adapt things, you are resilient by nature, you can adapt into a new situation or circumstances very well. It gives you an edge over other people, because everyone is not having those things. If you are standing with the same aptitude for an interview, how they are going to select you, why they are going to select you, because you must be good, quite good enough
from, if you're going to compare yourself with others, how they are going to compare you? With your soft skills, how, with your body language, how you treated their staff, how you're sitting, what is your patience level, everything is going to be considered. So people who are open to both positive and negative challenges don't consider, even आप अपनी मैम का भी एक एग्जांपल लें, if your teacher is giving you an advice that you are not good into that thing, you have to work hard on that particular subject. Being a child, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि हमें टीचर बताती है कि ये सब्जेक्ट में आप वीक हैं, आपका असेसमेंट लिया जाता है। वाई? तो आप उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लीजिए, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, ये आपको बताया जा रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजिंग एरियाज जहां आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। सो यू हैव टू टेक, हम पॉजिटिव को तो बहुत अच्छे से ले लेते हैं, बट नेगेटिव को एक्सेप्ट करने में वी आर, वो कहते हैं ना, अच्छा सा वर्ड है, कंजूसी करते हैं। हम वहां पे खुशी से नहीं एक्सेप्ट करते कि माई टीचर इज गिविंग मी कंप्लीट आइडिया अबाउट मी, वो मुझे एक ऐसा एडवाइस दे रहे हैं कि आगे मैं कभी प्रॉब्लम में नहीं आऊंगा या आऊंगी। सो just take it as a positive aspect. So people, as I mentioned, who are accepting both positive and negative changes, can handle failures in a better way, which makes them good leaders. अगर आपने चैलेंजेस को अच्छे से लिया है, आपने उस नेगेटिव से कुछ नया सीखा है, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। यू कैन लीड समवन, बिकॉज अगर आप ये देखें, जिसने फेलियर देखा नहीं है ना लाइफ के अंदर, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता, बिकॉज उसको ग्रास रूट लेवल के चैलेंजेस पता ही नहीं है। वन नीड्स टू बी एबल टू टेक रिस्क एंड चैलेंजेस in order to move ahead in one's career. A person who has strong stress tolerance and motivation can push through any challenge and come out victorious. So this attitude also helps the entire team as it encourages them. अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, आप क्लास मॉनिटर हैं और क्लास में कुछ गलत काम किया बच्चों ने, एंड आपको उन लोगों को कोऑपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? So this attitude also helps the entire team to encourage, and anyone who wants to be part of the top management needs to have these soft skills. अगर आप ऐसा कुछ एस्पायर कर रहे हैं ना लाइफ में कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या सॉर्ट ऑफ कुछ भी ऐसा, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि नेगेटिव को और क्रिटिसिज्म को कैसे एक्सेप्ट करना है। दिस इज व्हाट मेक्स देम डिफरेंट एंड वर्दी, आई बिलीव, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एज आई मेंशन अर्लियर, टाइम मैनेजमेंट, वो हम बीइंग अ स्टूडेंट बचपन से सुनते आए हैं, और मुझे लगता है कि ये सुनने तक नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी अवर हैबिट नाउ, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वन सच थिंग दैट इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि मैं करियर की बात कर रही हूँ, अगर आप इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट, आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी अपस्किल कर सकते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज सिग्निफिकेंट, and in one's growth, all of us have only 24 hours in our daytime, but what makes the difference is how we use the time to get the best. अभी अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली करियर प्लानिंग, सो ये अपने आप में एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप टाइमली अपने करियर को प्लान नहीं करेंगे, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज थिंग्स इन फ्यूचर। सो ये टोटली टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। सो यू नीड टू बी वेरी गुड ऑन टाइम। आपको एक मैनेजमेंट सीखना होगा कि अगर आज मैंने कुछ प्लान किया है, या मुझे आज कुछ किसी करियर के बारे में जानना है, या आज मेरा होमवर्क प्रोजेक्ट में, एक छोटी सी बात करती हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट को ही स्केड्यूल कर रहे हैं और उसे ऑन टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी थ्रू आउट योर लाइफ, और आप इनिशिएटिव तो लेंगे लेकिन फिनिशिएटिव नहीं होगा, तो आप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो डेडलाइन जब तक सिर पे नहीं आएगी, तब तक हम नहीं उसमें करेंगे। ये एक हैबिट को अपने छोड़ना होगा, एंड वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द आउटपुट और द फिनिशिएटिव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मोर ओवर, अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वो है हमारे अर्ली करियर प्लानिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें हैं जो उसमें काम आती हैं। सो नाउ द मेजर थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं हार्ड स्किल को। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक लाइन में खड़े हैं जहां पे 10 लोग रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं और एक ही पोजीशन है, तो वहां हार्ड स्किल आप सबके एक जैसे हैं, मान लीजिए एप्टीट्यूड वाइज, बट वहां आपके सॉफ्ट स्किल आपको एनहेंसमेंट करेंगे, आपका प्रोफाइल आपको एनहेंस करेगा। सो सॉफ्ट स्किल्स कॉम्प्लीमेंट हार्ड स्किल, एंड प्रोफाइल बिल्डिंग कॉम्प्लीमेंट योर स्किल्स। सो टेक्निकल और हार्ड स्किल्स आर नॉट इनफ, आई बिलीव, इन टूडेज लाइफ। अभी हम बहुत टेक्नो सेवी हो गए हैं, हम बच्चे हैं, हम समझते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है, हमें लगता है हमें लैपटॉप मैनेज करना आता है, फोन मैनेज करना आता है, वी आर वेरी मच टेक्निकली साउंड। ऐसा नहीं है।
आज की डेट में जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना बच्चे, इन फ्यूचर जब आप अपने हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, ये बहुत ही बेसिक थिंग हो चुकी है आज की डेट में। ये हर बच्चे को पता है, एंड ड्यू टू कोविड आज की डेट में हर एक बच्चा गो थ्रू कर चुका है इस पूरे प्रोसेस से। अभी अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत है। सो टेक्निकल एंड हार्ड स्किल्स की जब हम बात करते हैं, आर नॉट इनफ टू रीच टू टॉप or become successful in your career. Your soft skills need to shine along with all the technical knowledge that you have. For example, if you're a person who has all the qualifications to get into business development sector, but he has very poor communication skills, they would be not be able to succeed in that domain. So why profile building is important, as I mentioned earlier. So along with this, तो प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कंपटीशन। इंक्रीजिंग कंपटीशन में अगर हम देखें, अगर हम जैसे मैं बार बार एक ही एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको भीड़ से अलग वही करेगा आपका प्रोफाइल। देन आपका कमिटमेंट चेक देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टी ग्राफ की जब हम बात करते हैं कि आप कितना डेप्थ में गए उसको सीखने के लिए, तो आपकी कमिटमेंट पता चलती है कि आप कितने कमिटेड है टुवर्ड्स दैट टास्क। देन आप अगर आप मॉडर्न टेस्ट की अगर हम बात करें, हर जगह पे इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, नए नए तरह के टेस्ट आ रहे हैं, अगर हम टेक्निकली साउंड नहीं होंगे तो हम उनको नहीं बीट कर सकते हैं। देन ये भी देखा जाता है कि आपका चेंज इन हार्ट, इसको अवॉइड करने के लिए हम कभी कभी जबरदस्ती उस सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं, बिकॉज जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि 11th-12th के बच्चों के साथ ऐसा होता है। इवन हम बीटेक के सेकंड ईयर के बच्चों से अगर हम बात करें, समहाउ दे आर वेरी कंफ्यूज कि मैं बीटेक कर ही क्यों रहा हूं। और तब उन्हें रियलाइज होता है बिकॉज मेरी फैमिली का प्रेशर था, मेरा पीयर प्रेशर था, बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मुझे इंजीनियरिंग की तरफ मुझे धकेल दिया गया। ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग अगर करना है, मैथ्स अच्छा है तो इंजीनियरिंग ही करना है, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी करियर क्लस्टर्स जहां पे आप मैथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्लान अर्लियर, तब आप देखेंगे कि उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे करियर क्लस्टर्स की तरफ आप जा सकते हैं। अगर हम बायो की बात करें तो बायो पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पीसीबी के बाद मुझे डॉक्टर ही बनना है। अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी रितु मैम से, अगर हमें आगे फ्यूचर में टाइम मिलता है या मौका मिलेगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक इट ऑन अ स्ट्रीम वाइज। कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ है तो नीट काउंसलिंग में यूजुअली क्या है कि अगर मेरा आफ्टर नीट डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी करियर्स विच कैन लीड टूवर्ड्स साइंस से निकलने के बाद ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स। अदरवाइज हम लोग क्या है, लिमिटेड एक माइंडसेट रखते हैं कि अगर कॉमर्स ले लिया तो सीए बनना है, सीएस बनना है। कभी हम एक्चुरियल साइंस के बारे में नहीं सोचते हैं। देन ह्यूमैनिटीज अगर ले लिया तो कभी हम हिस्टोरियन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो म्यूजियम को ऑपरेट करने के लिए और ग्लोबल लेवल पे इसकी इतना डिमांड है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द ग्रोथ प्लान। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन द टाइम डिपेंडेंट, कि हमें जैसे मैंने बताया कि बताया जाता है कि आपने इनिशिएटिव लिया लेकिन फिनिशिएटिव होना जरूरी है। तो हम ऑन टाइम कितने चीजों को खत्म करते हैं, वो एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी जैसे आज हमने जितनी भी बात करी है वो है कि अर्ली करियर प्लानिंग करना है, एक करियर को चूज करने में। नाउ द पॉइंट इज दीज आर द मेजर कंसर्न एरियाज वी ऑल मस्ट नो, बट today I would like to share a very important thing that will going to give you a brief idea before choosing your dream career. अभी तो ये है कि प्लान जल्दी करना है। मान लीजिए आपने अपने करियर के लिए 2 या 3 आपने क्लस्टर सोचे, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू परस्यू विद द सेम। लेकिन किसी ड्रीम करियर को चूज करने के लिए उसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब हम उसकी वर्क एक्टिविटीज की बात करते हैं वो हमें जानना जरूरी है कि जैसे मैंने बताया कि वो एक सिटिंग जॉब है या एक फिजिकल टास्क की जॉब है। सो डूज एंड डोंट्स वी नीड टू बी वेरी मच श्योर। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल और लूंगी। अगर हम आर्मी पर्सनल को देखते हैं, पुलिस पर्सनल को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइनर्स हैं, वी आर फैसिनेटेड बाय देयर जॉब। लेकिन जब हम उसको रियल में, आप बेटे जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहनेंगे या व्हाइट कोट पहनेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि क्या चैलेंजेस हैं एंड व्हाट दे आर सेक्रीफाइसिंग। सो समहाउ बहुत ही जुवेनाइल बच्चे होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट जॉब। So we need to understand what are the don'ts we should be very much aware about. The specialization tracks, जैसे मैंने बताया कि एक करियर क्लस्टर वहीं पे वाइंड अप नहीं होता, उसके अंदर से बहुत सारे ऑक्यूपेशंस निकलते हैं। हॉस्पिटैलिटी इज नॉट अबाउट होटल इंडस्ट्री ओनली, उसमें आप ट्रैवलिंग भी देखते हैं, उसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट भी देखते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा दायरा हो चुका है। इवेंट मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट क्लस्टर नाउ।
सो द करियर एंट्री पाथवेज, जहां हम स्टक हो जाते हैं स्ट्रीम को लेके, ऐसे बहुत से करियर्स होते हैं जहां पे आप किसी भी स्ट्रीम बैकग्राउंड अंडर ग्रेजुएशन से आके उसको कॉमन करियर्स को चूज कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम इंजीनियरिंग सोच रहे हैं, सो ओनली जेईई इज नॉट अ कंप्लीट डायरेक्शन बोर्ड नहीं है। आप डिप्लोमास के थ्रू भी बच्चे वहां पे जाते हैं। सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट थिंग, और वो होगा अर्ली करियर प्लानिंग से। देन आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर क्या रहने वाली हैं, योर कॉम्पिटेंसीज विच आर रिक्वायर्ड, द स्किल्स रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बताया कि जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, कहाँ पे कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसकी कॉम्पिटेंसीज देखेंगे। देन द अर्निंग, जैसे मैंने बताया कि वाई वी आर डूइंग ऑल द स्ट्रगल, ऑल द अपने करियर के लिए जो हम इतना जद्दोजहद करते हैं, तो क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस थिंग। हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए, फैमिली की स्टेबिलिटी भी चाहिए, और हमें सबसे अच्छी चाहिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो उसमें अर्निंग के प्लान्स क्या है, ग्रोथ प्लान्स क्या है, उसको देखे बिना अगर हम कुछ भी परस्यू करते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू रिग्रेट, और हम वहां पे अपने आइडियाज को चेंज करेंगे। सो वी नीड टू बी वेरी मच श्योर कि अपने करियर ग्रोथ को, अर्निंग को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, सभी चीजों को देखें। बट आप लोगों के लिए अभी क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब सोचने से पहले कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, कोई भी आपने करियर सोचा, कोई भी आपने कोर्स सोचा, अंडर ग्रेजुएशन लेवल का आपने सोचा, कई बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं पा पाते। क्या रीजन है? क्योंकि जो हमने कॉलेज चूज किया, शायद उस कॉलेज से निकलने के बाद हम रिक्रूटर की फर्स्ट चॉइस नहीं होते हैं। दूसरी चीज हम क्या देख मिस करते हैं कि कई बार हमने सोचते हैं कि ये बजट फ्रेंडली नहीं है, मेरी पॉकेट साइज के पास हिसाब से नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर आप अर्ली करियर प्लानिंग करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कॉलेजेस हैं जहां पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। सो हाउ अगर आप वही रैंडम डिसीजन लेंगे, आज मैंने सोचा मुझे कल अप्लाई करना है, तो आपको स्कॉलरशिप यू आर गोइंग टू मिस दैट। बट अगर आप एक साल पहले प्लान करते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है ये देखते हैं, उसको अपीयर करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, फ्लेम है, क्रिया है, लिबरल आर्ट्स की अशोका यूनिवर्सिटी है, दे आर प्रोवाइडिंग अप टू 100% तक स्कॉलरशिप फॉर अ गुड स्टूडेंट। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड मेरा प्रोफाइल कहाँ है, मेरा एप्टीट्यूड कहाँ है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स कब हो रहे हैं, मुझे कब अप्लाई करना है, वी नीड टू बी अपडेटेड। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट सिस्टम कि जहां हम स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को वो एक अपडेशन दे सकें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे हम आपको अलर्ट दे सकें ऑन टाइम। जैसे ही स्कॉलरशिप एग्जाम आया, आप प्लीज गो थ्रू करिए, ये साइट है, इस लिंक पे आप जाइए, वहां पे उसको गो थ्रू करिए, उसके पूरे सिस्टम को पढ़िए, परफॉर्मा को। और ये जो बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है कॉन्सेप्ट, बिकॉज दोज यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो ऑफरिंग गुड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। आई बिलीव मेरा जहां तक आइडिया है, जो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे लगता है ओवरलोडेड हो जाएगा। तो इसको मैम अगर कभी आगे फ्यूचर में टाइम मिला तो वी विल टेक इट ऑन स्ट्रीम वाइज एज वेल। सो Yes, इसके ma'am. साथ आई बिलीव, thank you very much, and Urvi, I would like you to please take over from here. Thank you, ma'am. Thank you for giving us such information. We really required this at this stage. Okay, so everyone, I'm just going to share with you our career library, our free career library. So uh, this is our website, everyone. आप www.paramhansvidyapeeth.com इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये सर्विसेज हैं करियर काउंसलिंग एंड असेसमेंट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। इसके अलावा आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, दैट इज check suitability, career library, contact us and career booster program. So you need to click on career library. यहाँ पर आपको सारे करियर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको स्पेसिफिक उन करियर में क्या मिलेगा, जैसे लेट्स क्लिक ऑन डिजाइन एंड आर्ट्स। यहाँ पर आपको सारे डिजाइन एंड आर्ट्स की जितनी भी हमारे पास स्ट्रीम्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, फील्ड्स मिल जाएंगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दैट। इसमें आपको मिल जाएंगी ये वाली सारी चीजें, व्हाट विल बी द वर्क नेचर रिक्वायर्ड, की स्किल्स, ऑक्यूपेशन, करियर लाइब्रेरी, करियर वीडियोस, नेविगेशंस एंड
these are the all details you will be find there. सैलरी क्या होगी, इसके अलावा आपकी फी क्या होगी, डिमांड क्या है, सारी चीजें आपको हमारी करियर लाइब्रेरी में मिल जाएगी. द बेस्ट पार्ट ऑफ आर करियर लाइब्रेरी इज दैट कि ये अपडेट होती रहती है जैसे ही कोई भी करियर लाइब्रेरी में चेंज आता है. कभी भी कोई भी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आएगा, किसी भी फील्ड में चेंज आएगा, तो ये अपडेट होती रहती है. दिस इज द फ्री करियर लाइब्रेरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. एंड that's all. I'm just going to share the link on chat box. We have already shared that. I'm just going to share the our website link also. Here I would like to mention that, with this form, if students are having any query in their mind, they can send us through this Google link as well. Also, please review us on Google page also. And yeah, I'm just going to share the feedback form. So Thank you, Niti ma'am. I believe students have, they must be enriched with the knowledge. My effort was totally that. And thank you once again to the school and the management for giving us this opportunity to, interact with the students. If students are having any query in their mind right now, even if they want to ask, because time is a constraint, otherwise I don't have any issue. That's why we have shared a Google form with the management, so that the students can, somehow on open platform, students are not very much comfortable to share their, queries. Yes. So, yeah, that's why we have shared this. Yes, Niti ma'am. yeah, let's end up. Niti ma'am, you are mute. Niti ma'am, you are mute. So sorry. On behalf of Jagannath International School, I thank you, Monica ma'am, for taking out your time and guiding us so nicely. In fact, I was very happy because you talked about certain things which we usually skip, and students also tend to, ignore them. Like you talked about the soft skills. They are more focused on the academic part, but they forget that they have to, refurbish themselves also. They have to take care of these skills because they are equally important. So it's good that today this point has been highlighted, and I hope students have taken a note of this, that why their teachers are after them and why we are trying to train them in various, types of events, so they may find out where they are good at. That's really nice that this point was highlighted. And with such an in-depth explanation of everything, I think the session was wonderful. And the library, the career library which you are providing, that's really awesome. And I think that's a wonderful portal which will be of help for so many students. So really, hats off to you for doing such a wonderful work and making things so easy for the upcoming, for the students, for their upcoming career choices. Thank you so much. I hope students have also gained a lot from this workshop. And in future, if again we meet, we'll look forward for the session. Thank you, Ritu ma'am, for organizing and taking this much strain and pressure to conduct this. Thank you so much. Thank you, everybody. Thanks, everyone. Thank you, Niti. Thank you, Monica, for such a nice presentation. Really, there were so many things which are very important for the student, right? And the free library for the students is a gift, I think, the public gift for the student, which will forever for the future also. And certainly, we will have the stream-wise presentation of you also, ma'am. Thank you. Thanks a lot, ma'am. And thank you. I would like to, give a big thanks to Vaibhav to, approaching to this school and, giving us an opportunity to meet such a beautiful and, knowledgeable staff of Jagannath International School. Because, beauty lies in the eyes of beholder, and आपका जो thought process है, ma'am, this is really appreciable. Because कई बार हमारा एक professional aspect कहीं रहता है कि बच्चों के लिए we are reaching so many schools. But those who are very much serious about this idea that, students must be enlightened with this thing. And schools are taking initiatives like your school. I believe that you are, I really appreciate your effort. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Monica.
Thank you, Bhatia. Thank you, Thank you, Ravi. ma'am. Thank you, Abhav sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Okay.